students, here I am Deepika from Computer Science Department of Government College Barwala Hisar, and today I am going to discuss some more things in functions. In the previous lecture I have discussed functions, in which we have discussed prototype of a function, function definitions, how to call a functions and all these things, what are the formal parameters, what are the actual parameters, all things are done in previous lecture. Now I'm going to discuss something more in functions. Firstly I would like to tell about nesting of functions. As you know very well that nesting is what, something within something, means if you are doing nesting of for loop, then you are doing, you are writing for loop within a for loop, है ना. Same is done in case of nesting of functions, means functions within a function, that is called nesting. So this can be shown here. Main is a function in which function 1 is nested, है ना. function 1 को यहाँ पर किया गया. This is the function calling. Okay, now this is the function definition. यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लगा हुआ है. So within function 1 what you are doing, this is the definition of function 1. Here function 2 is there, it means function within a function. मेन फंक्शन में आपने फंक्शन 1 को कॉल किया है, फंक्शन 1 के अंदर आपने फंक्शन 2 को किया है. So this is called nesting of functions, means function within a function. One thing that you have to नोटिस दैट आपने जो फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर आप एक फंक्शन 1 को कॉल करें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, बिकॉज मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन ना, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शन. सो आप फंक्शन के अंदर कितने भी फंक्शंस डाल सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस. नाउ सेकेंड thing I would like to discuss here, parameter passing in functions. How the parameters can be passed in functions. There are two approaches that can be followed for passing parameters in function. First is call by value and second is call by reference. There are two types of approaches which can be followed in passing of parameters in functions. So call by value क्या होता है? Whenever you are passing a copy of actual parameter to a formal parameter, तो यहाँ पर आपकी एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर की अलग अलग कॉपीज़ होगी, अलग अलग मेमोरी में स्टोरेज होगी वहाँ पर. दिस इज़ कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू देखो यहाँ पर, the call by value method copies the value of actual parameter in formal parameter. formal parameter में actual parameters की value copy होती है. that is the function creates its own copy of arguments. इसमें जो function होता है वो arguments की अपनी एक अलग सी copy बनाता है. in case of call by value this can be seen here with the help of example. Here main is a function and यहाँ पर हमने क्या, print value of actual parameters, printf before फंक्शन कॉलिंग हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी. ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू. नाउ आई एम कॉलिंग द स्वैप फंक्शन. स्वैप इज द फंक्शन इन विच ए एंड बी आर पास्ड कॉल बाय वैल्यू, पास्ड बाय वैल्यू. तो यहाँ पर हमने ए और बी को, और फिर हमने कॉल करवाने के बाद अगेन आई एम गोइंग टू प्रिंट आफ्टर फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो बिफोर कॉलिंग फंक्शन ए एंड वैल्यू की वैल्यू क्या थी, ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20. नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड एंड ए एंड बी पैरामीटर्स आर पास्ड बाय वैल्यू. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अब स्वैप फंक्शन है. यहाँ पर स्वैप फंक्शन में ये देखो, दिस आर द फॉर्मल पैरामीटर्स इंट एक्स एंड वाई. नाउ इंट टी मैंने एक वेरिएबल लिया, टी के अंदर मैंने x की वैल्यू की पास, x में y की, y में t की. दिस इज़ द लॉजिक फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. हमने अगर दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है वैल्यू को, दैट इज़ कॉल्ड स्वैपिंग. तो स्वैपिंग में हम क्या चाहते हैं, a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू क्या थी 20. हम चाहते हैं कि फंक्शन कॉल करने के बाद a की वैल्यू 20 हो जाए और b की वैल्यू क्या हो जाए, 10 हो जाए. ठीक है, हम चाहते हैं ये. तो हम ये कर रहे हैं, दो तरीके से आप कर सकते हो, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो हम कॉल बाय वैल्यू से ये कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पर अब
ए के अंदर एक्स की वैल्यू, एक्स में क्या गया, ए गया, और वाई में क्या गया, बी की वैल्यू गई। एक्स में 10 था, वाई में 20 था। अब हमने क्या किया, मैंने इंटीजर एक्स लिया और टी में एक्स लिया। एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, 10 थी, ठीक है। एक्स में फिर मैंने वाई लिया, वाई की वैल्यू क्या थी, 20 थी, ठीक है। और वाई में मैंने टी लिया, टी की वैल्यू क्या हुई, 10 हुई। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू कैसी हुई। अब x की वैल्यू पहले क्या थी, x की वैल्यू, a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू, y की वैल्यू 20 थी। और अब क्या होगी, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10 होगी। मतलब कि हमने स्वैप कर दिया, दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया। सो अब ये जो चेंज हुआ है, दिस इज़ लोकल विद इन अ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर ही चेंज हुआ है। मेन फंक्शन में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए और बी की वैल्यू बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन सेम रहेगा। देखो ये आपका इसका आउटपुट है, बिफोर फंक्शन कॉलिंग ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 10। सो स्वैपिंग में आपने क्या किया, कॉल बाय वैल्यू किया। कॉल बाय वैल्यू करने से क्या हुआ, ए की वैल्यू जो 10 थी वो x की अंदर कॉपी हो गई और b की वैल्यू 20 थी वो y में कॉपी हो गई। अब आप x और y में इंटरचेंज कर रहे हो, दिस वैल्यू विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन a एंड b, a और b की वैल्यू वही सेम रहेगी, बिकॉज in call by value only the copy of the actual parameter is passed to the formal parameter। हमें एक सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है इसके अंदर। That's why the value of a and b will not be interchanged after calling the function also। फंक्शन को कॉल करने के बाद भी a और b की वैल्यू स्वैप नहीं होती है। तो इसको कैसे किया जा सकता है, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, दिस मेथड पासिस द एड्रेसेस और रेफरेंस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। क्या कह रही है कि एड्रेस पास होता है इसमें, एड्रेस या रेफरेंसेस पास होते हैं एक्चुअल पैरामीटर के। द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। दिस इज़ द मेन थिंग कि वहाँ पर क्या हो रहा था, कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स की अलग अलग कॉपीज़ थी। तो अगर आपने एक्चुअल में कुछ चेंज किया तो वो फॉर्मल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और फॉर्मल में अगर आपने कुछ चेंज किया दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर्स। बट इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस हम एड्रेसेस पास कर रहे हैं, तो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। दैट्स वाई इफ़ anything is done in formal parameter that are reflected in actual parameter, and if anything is done in actual parameter that is reflected in formal parameter। ये किस केस में होता है, कॉल बाय रेफरेंस में। अगर हम सेम एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया स्वैपिंग का, उसी को अगर हम कॉल बाय रेफरेंस में करते हैं, देन व्हाट इज डन, दिस कैन बी सीन हियर। कॉल बाय वैल्यू में हमने किया, अब हम कॉल बाय रेफरेंस से करेंगे। हमने सेम किया, इंट ए में 10 डाला, बी में 20 डाला, ठीक है। उसके बाद हम वही सेम कर रहे हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो कि आपकी 10 और 20 थी, है ना। अब हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन को कॉल हो रहा है यहाँ पर, दिस इज स्वैप। अब यहाँ पर देखिए m% ऑफ a, m% ऑफ b। Now what you are doing here, in this call by reference you are passing the address of एक्चुअल पैरामीटर। m% यहाँ पर क्या मतलब होता है, एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर, है ना। a का एड्रेस पास किया और b का भी एड्रेस पास किया। नाउ दिस एड्रेस विल बी कॉपीड, बिकॉज एड्रेस है तो उसको होल्ड करने के लिए देयर शुड बी सम पॉइंटर। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन डेफिनेशन में जो है आपका, फंक्शन डेफिनेशन में है यहाँ पर आपका इंट, हमने वहाँ पर x और y सिंपल लिया था, बट हेयर दीज आर ऑफ टाइप पॉइंटर, बिकॉज हम एड्रेस पास कर रहे हैं यहाँ से, तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए पॉइंटर टाइप शुड बी दिया, और इंटीजर टाइप के, दैट्स वाई इंटीजर टाइप का हमने x पॉइंटर लिया और y पॉइंटर लिया। नाउ अगेन वी आर डूइंग द सेम लॉजिक इन दिस फंक्शन स्वैप। मैंने एक इंटीजर x लिया, और x t के अंदर मैंने दिस, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज वैल्यू ऑफ दिस ऑन एड्रेस दिस, मीन्स कि x के अंदर क्या, x की एड्रेस
में जो स्टोर है वो क्या वैल्यू है, मतलब कि वो क्या है, वो आपकी 10 है। और x में हमने क्या कर दिया, 20 कर दिया। x में इससे क्या हुआ, y की वैल्यू जो कि 20 थी वो हो गई, और y के अंदर हमने क्या कर दिया, t की जो कि 10 था। अब क्या गया, y हमारा 10 हो गया और x हमारा 20 हो गया। अब यहाँ पर बिकॉज दिस x एंड y, because here you are passing the address of a to x and address of b is passed to y, तो आपने जो x और y में जो भी चेंज किया है that will be reflected to a and b also। तो जो आपने यहाँ पर लिखा है आफ्टर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ, आफ्टर फंक्शन कॉल इज, यहाँ पर हमने a और b को प्रिंट किया, तो उसका आंसर देखिए क्या आ रहा है। फर्स्ट में बिफोर कॉलिंग फंक्शन 10 और 20 लिखा गया है, आफ्टर फंक्शन कॉल 20 एंड 10। दिस इज द चेंज बाय कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस से हमने किया, हमने a का एड्रेस x में किया है और b का एड्रेस y में किया है। तो यहाँ पर x y और a b ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, एंड बोथ b एंड y आर शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। सो वट एवर चेंज आर डन इन y दैट इज रिफ्लेक्टेड टू b, वट एवर चेंज इज डन इन x दैट इज रिफ्लेक्टेड टू a। दैट्स वाई यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फंक्शन में आपने x y के अंदर चेंज किया, वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो गया, a और b में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। सो दिस इज व्हाट अबाउट कॉल बाय रेफरेंस। So whenever you want to get reflected the value of actual parameter, whenever you are doing something change in formal parameter, then this can be done with the help of call by reference. So this is about, ये देखिए यहाँ पर same memory location is shared by a and x and by b and y. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। हेयर सम डिफरेंस इज गिवन इन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, लेट अस लर्न अबाउट इट। इन कॉल बाय वैल्यू फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स आर टू डिफरेंट वेरिएबल, जैसे कि ए बी और एक्स वाई दोनों ये वेरिएबल्स अलग अलग थे, कॉल बाय वैल्यू में ये अलग होते हैं। बट इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स सेम दो देयर नेम्स में भी डिफरेंट। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन सेम होती है, उनके नाम फिर डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ए था और एक्स था। सो ऑल दिस नेक्स्ट इज व्हाट फॉर्मल पैरामीटर्स आर, नेक्स्ट इज फॉर्मल पैरामीटर्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, फॉर्मल पैरामीटर्स आर नॉट डिक्लेयर्ड एज पॉइंटर। जैसे कि हमने कॉल बाय रेफरेंस में किया था, फॉर्मल पैरामीटर्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज पॉइंटर बिकॉज दे आर होल्डिंग सम एड्रेस, दैट्स वाई यहाँ पर ये पॉइंटर टाइप का होना जरूरी है। When the value of formal and actual parameter is changed, the corresponding value of actual and formal parameters not changed automatically। जैसे कि हमने किया a और b को हमने कॉल बाय वैल्यू में पास किया था, तो हमने बिफोर फंक्शन कॉलिंग हमने प्रिंट करवाया a की वैल्यू b 10 और b की वैल्यू 20 प्रिंट हुई, और आफ्टर कॉलिंग फंक्शन भी 10 और 20 प्रिंट हुई, जबकि हमने फंक्शन के अंदर स्वैपिंग किया है। सो दिस इज़ द पॉइंट सेम कि जो हमने फॉर्मल पैरामीटर में जो चेंज किया है या एक्चुअल पैरामीटर जो चेंज किया, दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड टू एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, बट दिस इज डन इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस। जो भी हमने एक्चुअल पैरामीटर में चेंज किया दैट गेट रिफ्लेक्टेड टू फॉर्मल पैरामीटर्स, एंड वट एवर चेंज इज डन इन फॉर्मल पैरामीटर दैट गेट रिफ्लेक्टेड टू एक्चुअल पैरामीटर्स। नेक्स्ट इज एक्चुअल पैरामीटर में बी अ कांस्टेंट, अ वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन। जो एक्चुअल पैरामीटर है वो आपका एक कांस्टेंट भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है और एक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। बट इन केस ऑफ एक्चुअल कॉल बाय रेफरेंस, एक्चुअल पैरामीटर मस्ट बी अ वेरिएबल, वो एक वेरिएबल ही होना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कि आप फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू चेंज करो, कुछ करो तो कांस्टेंट होगा, तो उसमें फिर वैल्यू कैसे चेंज होगी, नहीं होगी इस केस में। दैट्स वाई एक्चुअल पैरामीटर मस्ट बी अ वेरिएबल। नेक्स्ट इज एक्चुअल पैरामीटर इज रीड ओनली, एंड इन केस ऑफ दिस एक्चुअल पैरामीटर इज रीड राइट। इसमें रीड ओनली कैसे होता है, बिकॉज उसके आप एक्चुअल पैरामीटर में फंक्शन की फॉर्मल पैरामीटर की हेल्प से आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ दिस इट कैन बी डन। यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर इसने डिक्लेयर, यहाँ पर एक्स को ऐसे
डिक्लेयर किया है, यहाँ पर आपने एक पॉइंटर टाइप लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर व्हाट अबाउट डिफरेंस, व्हाट अबाउट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होते हैं। नेक्स्ट इज रिकर्जन। yes, this is one of the main function type. What is that recursion means? Recursion meaning whenever the function call itself, then it is called recursion. recursion का क्या मतलब होता है? जब फंक्शन है वो अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इन दैट केस दिस इज कॉल्ड recursion. Here it is shown recursion refers to the process in which function calls itself. Recursion is a powerful technique, एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। समटाइम्स इट आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि आप इस किसी प्रोग्राम के लॉजिक को कैसे करो। सो रिकर्जन इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक इन दैट केस कि आप उसको रिकर्जन की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं। रिकर्जन का मतलब क्या होता है? जब आपका फंक्शन आपके खुद फंक्शन को ही कॉल कर रहा है तो वो उसको बोलते हैं हम रिकर्जन। इट विल बी मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हेयर। जैसे कि आपको पता है आप कोई भी फैक्टोरियल निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है फैक्टोरियल निकालने का क्या लॉजिक है। इफ़ फैक्टोरियल आप 0 का निकालते हैं तो वो आपका 1 होता है, और अगर आपका बाकी सब में आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे कि आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या करो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 3 का निकालना है 3 को आप क्या कर सकते हो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 को आप ऐसे लिख सकते हो और फिर इसको आप ऐसे, ठीक है, ये लॉजिक हुआ। तो अब इस केस में रिकर्जन का क्या यूज़ हुआ? जैसे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को निकालने के लिए आप फिर से फैक्टोरियल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल का यूज़ करें। सो इट इज़ व्हाट अबाउट रिकर्जन कि आप 4 का फैक्टोरियल आपको निकालना चाहते हैं आप, और आप फैक्टोरियल का ही यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू शुड नोटिस व्हाट अबाउट रिकर्जन। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने एक फैक्टोरियल निकालना है, आई एम गोइंग हेयर एंटर नंबर, स्कैन करवाया मैंने नंबर। अगर n लेस देन 0 है देन इनवैलिड नंबर, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं, इनवैलिड नंबर हम प्रिंट करवा रहे हैं। एल्स प्रिंटफ, यहाँ पर देखिए आप मैंने यहाँ पर फैक्ट को फंक्शन को कॉल किया है, फैक्ट फंक्शन है, फैक्ट ऑफ n मतलब n में वो फंक्शन पास n की वैल्यू फैक्ट नाम के फंक्शन में पास होगी। अब फैक्ट का क्या है, फैक्ट देखते हैं हम। दिस इज़ फैक्ट। यहाँ पर फैक्ट एक फंक्शन है जो एक यहाँ पर हमने एक फॉर्मल पैरामीटर लिया हुआ है x। इफ़ x इक्वल टू 0 इन दैट केस रिटर्न 1। अगर हम मेन फंक्शन से अगर हम 0 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 0 इक्वल हुआ तो मतलब 1 रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को। एल्स क्या कहता है? रिटर्न x इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस 1। यहाँ पर देखिए दिस इज़ द रिकर्जन। आपने फैक्ट नाम का एक फंक्शन था, उसी की बॉडी में आपने फैक्ट को कॉल किया है विद सम डिफरेंट पैरामीटर x माइनस 1। यहाँ पर x है, यहाँ पर x माइनस 1। एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि रिकर्जन में ऐसा लॉजिक जरूर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होके लास्ट में आपको आउटपुट दे। ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट उसी लूप में चलता रहे, बार बार फैक्ट को ही खोलता रहे। कहीं पर टर्मिनेशन पॉइंट या रिटर्न पॉइंट आना चाहिए। जैसे जब भी आपकी x की वैल्यू 0 होगी तो रिटर्न 1 वो करेगा। उस केस में आपका फंक्शन कॉलिंग मतलब रिकर्जन प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा और फंक्शन आउटपुट देगा। सो यहाँ पर यही मेन लॉजिक है कि फैक्ट नाम के फंक्शन में आप फैक्ट को ही कॉल करें। दिस इज़ द रिकर्जन। तो जैसे कि आपको अगर 3 फैक्टोरियल निकालना है, इस केस में कैसे लॉजिक रहेगा? आपको यहाँ पर x में मेन फंक्शन से 3 गया। इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, ये ट्रू नहीं है बिकॉज x इज़ 3 हेयर। सो यहाँ पर क्या आएगा? रिटर्न में 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, फिर 2 की फिर कॉल जाएगा यहाँ पर, फिर कॉल गया इस पे। अब x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब फैक्ट की जगह क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पर इसकी जगह x यहाँ पर 2 है, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1, फैक्ट ऑफ 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद फैक्ट ऑफ 1 फिर कॉल होगा यहाँ पर फिर कॉल गया यहाँ पर, फिर x की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पर फिर रिटर्न करेगा x इंटू x की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो अब रिटर्न क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0, फैक्ट ऑफ 0 गया, फैक्ट ऑफ 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी? 3
इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0, अब फैक्ट ऑफ 0 गया यहाँ पर, फैक्ट ऑफ 0, तो x इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1 कर देगा। अब ये वैल्यू फिर रिटर्न करेगा मेन को, कौन सी वैल्यू, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, अब 6 वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोसीजर दैट हैज़ टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रिकर्जन। तो अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तब रिटर्न, ये टर्मिनल पॉइंट कहीं ना कहीं आना जरूरी है लॉजिक में फंक्शन के, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप विल बी देयर कि फैक्ट बार बार कॉल करता रहेगा, कॉलिंग चलती रहेगी, तो कभी ना कभी वो टर्मिनेशन पॉइंट इट मस्ट बी देयर। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट रिकर्जन ऑफ फंक्शन। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि फंक्शन को कैसे कॉल किया जा सकता है, पैरामीटर्स को, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, एंड व्हाट अबाउट रिकर्जन। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।